Okay, beta, let us start with the chapter Weather, Climate, Adaptation of Animals to the Climate. Yesterday we discussed the terms which are commonly used while describing weather, and that is humidity. Humidity is the measure of water vapor or moisture present in air. It is expressed as percentage. What percentage? If we are talking about a humidity of 50%, it means that air contains about half the amount of water vapor required for saturation at that temperature. जो rainfall होती है, it is measured by an instrument which is called as rain gauge. Rain gauge basically जो होता है a measuring cylinder with a funnel at the top to collect rainwater. Yesterday we saw the activity how to make a simple rain gauge yourself. I hope you have made it. जो rain gauge होता है वो measure करता है rainfall को at a place in millimeters. Generally in a unit of millimeters. It can be done even in centimeters. Now once we discuss weather, we have told that weather जो होता है जो it is depending upon our surroundings. So it is day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to क्या-क्या चीजें. जैसे हमने कल weather report में देखा temperature, humidity, rainfall, wind speed. These all things are mentioned, and these describe the weather at a place at a particular time. So it is day-to-day condition. Weather is never constant anywhere. It keeps on changing. And that is why it is not easy to predict weather also. So weather is day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. अब क्या factors हैं जो कि decide करेंगे कि weather किसी भी place पे कैसा होगा? So those are called as the elements of weather. The major elements of weather are temperature, pressure, humidity, wind direction, wind speed, sunshine, clouds, rainfall, or in higher places, maybe hill stations, it is snowfall. So all these things, if you check on the weather report, all these things are mentioned accordingly. And so it's weather plays a very important role in our lives today. Weather affects many things what we do. For example, we wear clothes according to the prevailing weather. Nowadays, we would like to wear cotton clothes. We will not like to wear dark synthetic clothes. We will not feel comfortable in that. We eat food depending upon weather. We also make our travel plans keeping the weather in mind. So now we'll discuss as to how or what produces this weather. What causes this weather? Weather जो होता है, it is produced by the heat of the sun and the effect it has on the atmosphere. Ultimately, the sun is the only source of heat and light on the earth. Sun जो है बहुत ही huge sphere of hot gases है, बहुत high temperature के ऊपर. अब distance of the sun from the earth is very large. Even then, जो source है of all the heat and light on the earth is sun only. अब heat energy of the sun is absorbed and reflected by earth's surface, oceans, atmospheres, and that plays an important role in determining the weather at any place. For example, जैसे sun की heat जो होती है, it causes water from oceans and land to evaporate. अब ये water rise up करेगा, it will go into the atmosphere. Higher up वो cool हो जाएगा, condense हो जाएगा, clouds form हो जाएंगे, and that produces rain, leading to a rainy weather. ठीक है ना? This all creates. This is an example I am giving. So weather changes जो होती हैं वो they are so frequent because of the condition of Earth's atmosphere which keeps on changing frequently. ठीक है?
So this is ultimately, it is the sun's heat which is, and its effect, which is producing the weather. Now how will you we record, we saw yesterday कि जो weather होता है उसमें हमारे पास मैंने we did see that maximum temperature कितना है, minimum temperature कितना है, and if we check today's weather also, let us just confirm. You can also check today's maximum temperature, it is showing 33 degrees and minimum it is showing 25 degrees on my weather report. अब ये हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे करते हैं? जो हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे दिन में अचीव होगा वो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो लोएस्ट टेम्परेचर पूरे डे में, डे इन द सेंस 24 आवर्स में रिकॉर्ड होगा, वो होगा मिनिमम टेम्परेचर. अब नेचुरल है, कल जो हमने रिकॉर्ड किया था इट वाज 31, someone were saying 31, some were saying 32, so today it is 33 which is going to reach. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है ना, वो जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में आपने नोट किया होगा इट बिकम्स वेरी हॉट, अनकंफर्टेबल हो जाता है बहुत ज्यादा. ड्यूरिंग समर्स तो मिजरेबल होता है इन द आफ्टरनून because it has reached maximum temperature during the afternoon. और उसके बाद में it starts becoming little better, and by early morning we feel comparatively very cool and comfortable, because minimum temperature जो है वो generally जो होता है it is recorded early in the morning. So ये जो दो timings हैं, maximum temperature in the afternoon and minimum temperature in the early morning, will decide the maximum temperature and minimum temperature of the day, and this will keep varying. ये day to day vary करेगा, ठीक है. और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अब हम मेजर कैसे करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. वी हैव डन ऑलरेडी इन चैप्टर हीट कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स होते हैं, जिससे कि हम ये जो टेम्परेचर्स होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कैन बी रिकॉर्डेड. And we have to know कि while predicting this weather, we have to carefully monitor the atmospheric conditions of pressure, humidity, wind speed, wind direction, sunshine, cloud formation, rainfall. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर कर हम वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट करते हैं. और अगर प्रिडिक्शन हम वेदर की इन एडवांस कर देते हैं, if we predict the weather in advance, जैसे कि आप अपने मोबाइल्स में वेदर रिपोर्ट में चेक करते हो, इसको वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं. फोरकास्टिंग मतलब आप बिफोर हैंड बता रहे हो कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, आज वेदर हाउ मेनी चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेन, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ विंड स्पीड, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ प्रेशर, हाउ मच अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी विल बी देयर. तो ये जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं ये सारा वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ स्टेशंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड ऑल्सो द सैटेलाइट्स, जो वेदर सैटेलाइट्स हमने स्पेस में सेंड की हुई हैं, विच आर ऑर्बिटिंग हाई अप इन द स्काई टू प्रिडिक्ट वेदर well in advance. They make use of all this, and this scientific study of weather is called as meteorology. And the scientists जो इसको स्टडी करते हैं, they are called meteorologists, जो फोरकास्ट करते हैं वेदर को बिफोर हैंड. अब आपने नोट किया होगा जो डेली वेदर रिपोर्ट है वो इंफॉर्मेशन जो लेती है, जैसे कि जसमिलन टोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन पास्ट 24 आवर्स. वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट भी कर देता है वेदर फॉर द डे, ठीक है ना. एंड वी हैव टू रिमेम्बर कि वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो एवरी डे वेदर रिकॉर्ड करते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट. ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं वेदर के ओवर पास्ट सेवरल ईयर्स प्रिजर्व कर लिए जाते हैं. जो आज का टेम्परेचर है, जो कल का था, उससे पहले का था, जो मतलब सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, पास्ट सेवरल डेकेड्स. डेकेड्स मीन्स वन डेकेड इज 10 years. तो पास्ट सेवरल डेकेड्स का जो वेदर होता है, रिकॉर्ड होता है, वो प्रिजर्व किया जाता है. और ये रिकॉर्ड हेल्प करते हैं meteorologists to determine a weather pattern at a place, कि weather pattern क्या है उस place का. So weather pattern जो होता है, average weather pattern, कि कैसे behave करता है weather during this time or during any other time of the year at a particular place,
over a very long period of time, let's say 25 years, that makes the climate of that place. For example, मैं देती हूँ, if a temperature at a place is high most of the time, ज़्यादातर साल के ज़्यादातर time में it remains hot, then we call that climate at that place as hot climate. और अगर वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती रहती है फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ एट दैट प्लेस, जैसे कि चेरापूंजी है या मोसिन ग्राम है, प्लेसेस इन द नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, देन वी से कि क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, ह्यूमिड. ठीक है, तो जो वेदर पैटर्न ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता रहता है, उससे मीटियोलॉजिस्ट एक कन्वेंशनली फॉलो करते हैं कि दिस इज द वेदर पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड एंड दैट फॉर्म्स द क्लाइमेट एट दैट प्लेस. एंड एक्चुअली देखा जाए तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. एक पोलर क्लाइमेट है, एक टेम्परेट क्लाइमेट है, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एक डेजर्ट क्लाइमेट है. ये आप लोगों ने एसएस में भी यू हैव डन इट. एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज इट्स ओन क्लाइमेट. ठीक है, and our climate depends upon our position on the earth कि हम कहाँ पर located हैं and the distance from the sun of that particular area. Do you get this? कौन से factors होते हैं जो affect करते हैं climate को? Basically these 3 factors, temperature and rainfall. दूसरा है altitude. Altitude means height, मतलब plains and mountains जैसे altitude. And location with respect to sea, मतलब हम सी से या ओशन से कितनी पास हैं या कितनी दूर हैं. तो वेदर इट इज लोकेटेड नियर टू द सी और इट इज अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि सी वाटर जो है आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर हीट में किया हुआ है. सी वाटर जो है इट हीट्स अप स्लोली एंड ऑल्सो कूल्स डाउन स्लोली. तो इससे कुछ मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द कोस्टल एरियाज, क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज. तो इसीलिए जो टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज होता है वो इट इज नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो. और इसी बेसिस के ऊपर हमने जो इस चैप्टर में है, वील बी डीलिंग विद ओनली टू मेजर यू कैन से क्लाइमेट्स, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट एंड पोलर रीजन्स क्लाइमेट. क्योंकि ये जो 2 क्लाइमेट्स हैं, दीज आर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के ये क्लाइमेट्स होते हैं जो रीजन्स अराउंड द इक्वेटर हैं. इक्वेटर आपको पता है, हम लोगों ने एसएस में ऑलरेडी किया हुआ है. द रीजन्स अराउंड द इक्वेटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रीजन्स, जहां की सनशाइन डायरेक्टली ओवरहेड. ठीक है, सन रेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड वी गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन in the equator region and the region around the equator, and it is very hot climate. And as you move away from equator से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे towards the poles, the amount of heat, sun's heat received by the region वो decrease होती जाएगी और gradually it will become cooler climate. ठीक है, जो पोल्स हैं, अर्थ के पोल्स हैं, आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इक्वेटर जो है इट इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड पोल्स जो हैं देर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और इसीलिए जो सन रेज है दे हैव टू ट्रैवल मच मोर टू रीच द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, और इसीलिए इट मेक्स देम टू लूज मच ऑफ देयर हीट. जो पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ है ना, नियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, they receive minimum amount of, सबसे कम amount of sun's heat उनको मिलती है. और इसीलिए polar regions of the earth जो होते हैं वो extremely cold climate experience करते हैं. ठीक है, तो tropical regions में very hot and polar regions में extremely cold. तो ये जो 2 regions हैं extreme climatic conditions वाले regions हैं. हम लोग इन दोनों को मेजर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पर नॉर्मली भी फाइंड, और उनके बॉडी में क्या अडेप्टेशंस हैं टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. बट बिफोर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल
कि let's see श्रीनगर, इट इज सिचुएटेड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, है ना। हम कोई दो कंपेयर कर लेते हैं क्लाइमेट, दो प्लेसेस इंडिया में, पहले इंडिया में करते हैं, जो कि बहुत एक दूसरे से दूर है, जैसे श्रीनगर हो गया, या फिर त्रिवेंद्रम हो गया इन केरला, तिरुवनंतपुरम। तो इनके जो क्लाइमेट होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड जो श्रीनगर है दैट इज एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, माउंटेन्स पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। और जो त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम है, दैट इज इन प्लेन्स, सी लेवल पे है, इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। श्रीनगर जो है इट इज वेरी अवे फ्रॉम सी, बहुत दूर है सी से, कहीं आसपास सी नहीं है। लेकिन त्रिवेंद्रम बिल्कुल सी के पास में लोकेटेड है। श्रीनगर जो है इक्वेटर से भी काफी फार हो जाता है, लेकिन त्रिवेंद्रम कंपैरेटिवली, क्योंकि वो सदर्न इंडिया में आ जाता है, तो सदर्न इंडिया इज मतलब कंपैरेटिवली कश्मीर से, श्रीनगर से हम कंपेयर करेंगे तो वो इक्वेटर के, त्रिवेंद्रम इक्वेटर के थोड़ा पास हो जाएगा। तो अब ये टोटली डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ है। तो इन दोनों प्लेसेस में जो क्लाइमेट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। इसकी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में भी दी हुई है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है, मतलब टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये होल ईयर का, ये आपके कंपैरिजन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी आपकी बुक में। तो यू कैन सी द टेम्परेचर्स हाउ दे वेरी। अगर हम डाटा को बहुत ध्यान से देखते हैं ना, if you look at the data which is given about these two places in the country, then you will note that कि ये जो places हैं, can you check page number 71, श्रीनगर एंड तिरुवनंतपुरम। तो अगर हम इस डाटा को कंपेयर करेंगे ना, प्लीज चेक पेज नंबर 71 ऑफ योर बुक बेटा, तो हमें ये डिफरेंसेस पता लग जाएंगे उनके क्लाइमेट में, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में। श्रीनगर में टेम्परेचर्स राउंड द ईयर जो हैं दे आर नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, ठीक है। रेनफॉल भी एक एवरेज सी रहती है, और इसीलिए जो श्रीनगर का क्लाइमेट हम बोलेंगे, इट इज मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है मॉडरेटली हॉट और वेट क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है। अगर आप तिरुवनंतपुरम को देखोगे तो टेम्परेचर्स राउंड द ईयर वहां पर बहुत हाई है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है वहां पर। तो तिरुवनंतपुरम जो है उसका क्लाइमेट अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, इट इज हॉट एंड वेट, वेरी हॉट एंड वेट, ठीक है। तो इसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कैटेगरी में रख देंगे। राजस्थान हम लोगों को पता है इट इज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो राजस्थान जो होता है इसमें टेम्परेचर वेरी हाई रहता है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, सो इट इज हॉट। तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई, जसमिलन इट विल बी रिमेनिंग हॉट एंड ड्राई, एंड दैट इज अ डेजर्ट क्लाइमेट। लेकिन अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे अपनी कंट्री के, तो वहां पर जो रहता है ज्यादा रेन, बहुत ज्यादा रेन होती है, लाइक असम एंड ऑल दोज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो वहां का क्लाइमेट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, इट इज वेट। तो अगर आप नोट करोगे तो हमारे ही कंट्री में द टेम्परेचर कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो क्लाइमेट इज नॉट सेम एज वेदर. Weather is day-to-day condition of the atmosphere at a place, and climate is average weather pattern at a place taken over a very long period of time.